We'll focus on construction of SHE or NHE or standard hydrogen electrode. So we have to focus few things on it. First of all, we have to see that what we are using over here. We need a we need a uh, piece of platinum foil coated, which is coated with finally divided platinum called as platinum black. ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है बिकॉज इट गिव्स अ लार्ज सरफेस एरिया जस्ट टू गिव अ लार्ज गिव इट लार्ज सरफेस एरिया. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना है. देन वन थिंग इज़ दैट कि यू शुड हैव अ सोल्यूशन of concentration 1m. ठीक है, and so that it should give you H plus ions. So that thing, temperature, you should remember the temperature should be 25 degree centigrade and the electrode potential should be 0 volt. ये बातें हमें ध्यान देनी है. ठीक है, तो मैंने जो जनरल आइडियाज़ आपको बताए हैं, दैट्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड, बट आई विल गिव यू इन राइटिंग एवरीथिंग सो दैट you can understand. Now first of all, the thing is that the pure hydrogen gas should you, because hydrogen is a gas which you are using over here. So what will be your what will be your pressure? It will be 1 atm. So this thing you have to make it a point. So what things we have required? Temperature was 25, electrode potential was 0 degree. ठीक है, जो स्टैंडर्ड हमारा जो हमने देखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of SHE, whether it is used as cathode or anode, it should be 0 volt. Temperature which you have to maintain is about 25 degree centigrade or 298 Kelvin. ठीक, are you getting my point? Then because you are taking a pure hydrogen gas at a pressure of 1 atm, ठीक है, is bubbled over the platinum electrode, right? This platinum electrode works as or act as metallic hydrogen electrode. Temperature of the cell, ये ना temperature of the cell लिख लो, should be this much. और जो standard hydrogen potential I have already mentioned you, this thing you have to. Now this particular hydrogen electrode which you are used is for the 2 half cells of a voltaic cell. So it can be connected to either, it can be act as a this hydrogen electrode I have already mentioned you na, can act as cathode or anode with respect to the other electrode. ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं. दिस डायग्राम फॉर इट, एंड दिस डायग्राम कंटेन अ बीकर. ठीक है, and it contains the H ion solution, basically aqueous solution, because that solution will contain the H plus ions of 1 molarity. The temperature should be about 25 degrees centigrade to 98. You are using a pure gas of hydrogen of 1 atmospheric pressure, and over here you are using a glass. This beaker is holding a glass jacket which is open from one side so that you can pass the dry hydrogen gas through it. Now the electric current is passed through it. Over here you are seeing the platinum wire that is being joined with the platinum foil, which is this platinum foil is coated with the platinum black. That basically increases the surface area, or you get a large surface area, more and more absorption of ions could takes place over here. Now what is happening, that this pure hydrogen gas you are using at a small atmospheric pressure, and its concentration is also of 1 m, and you will get the solution is containing over here the H plus ions are there. I have already mentioned you that it contains
H plus ions. Now this electrode potential which is being platinum electrode that is being used over here, it's act as a metallic hydrogen electrode. And you know that this thing standard hydrogen electrode, because the temperature is it's maintained to 25 degree only, and its electrode potential is also 0 volts. So this thing you have to remember, that this particular hydrogen electrode or she which you are making it, it can be used for both the half cells, means your reduction half cell also and oxidation half cell also, because you know that she is used as anode also as well as cathode also, but every time the electrode potential should be 0. Now over here we are using the she's half shell at anode. So एनोड के केस में क्या होता है आपका, जब आप देखते हैं कि यहाँ पर H2 है, ठीक है, एनोड में यू नो देयर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन आता है, और ऑक्सीडेशन आने से आपको ध्यान देना है कि आपके 1 इलेक्ट्रॉन्स निकलते नहीं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, क्योंकि यहाँ 2 एटम्स हैं, एंड इट विल गिव यू H प्लस आयंस बेसिकली 2. This reaction can be written as, क्योंकि I have already mentioned you have to make this movement of electrons toward this side, it's negative, so it will become positive 2 electron ions. Now over here loss of electrons taking place, so it acts as anode, oxidation is taking place. ये she half cell reaction है आपका, और यहाँ electrode potential आपका कितना रहेगा, आपका electrode potential will be 0 volts. ठीक है, समझ में आ रही बात. नाउ नेक्स्ट इज कैथोड. कैथोड इज़ बेसिकली यहाँ पे अगेन इट्स ओवर हियर इफ इट्स मेक एज अ कैथोड, इट्स गिविंग यू रिडक्शन रिएक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड बी 0.0 वोल्ट. ये याद रखना है, खाली 0 मत लिखना, 0.0 डेसिमल में यूज़ करना वैल्यू. नाउ रिडक्शन में यहाँ पे देखो H आयन से अभी इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेंगे. जब 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ रिलीज़ हुए हैं, नो मैटर सिंगल एटम में, आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, क्योंकि इट विल गिव यू H2 गैस इज फॉर्म एट कैथोड. ठीक है, जब एनोड पे चलेगा तो H आयंस होंगे आपके, और अगर कैथोड पे आएगा तो कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन गैस आपको लिबरेटेड अप होगी. इसको आप बैलेंस कर लीजिए. अब आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द केस विच यू हैव टू रिमेंबर. नाउ द पॉइंट इज़ दैट ना, ये जो हाइड्रोजन हमने जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है, जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा याद रखना है, इट्स नॉट ऑलवेज़ कन्वीनियंट, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको मेंटेन करना, क्योंकि पॉइंट इज़ दैट इट्स अ हाइड्रोजन गैस. सो कहीं ऐसा ना हो हाइड्रोजन गैस का लीकेज हो जाए. दूसरी चीज़ जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आपको एक 1 यूनिट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है ऑफ H प्लस आयंस. ये मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है आपका, क्योंकि ये लिमिटेशंस हैं आपकी, ये प्रिकॉशंस हैं आपको दिए, इसको आप बेसिकली लिमिटेशंस मानिए, क्योंकि आपके कोर्स में लिमिटेशंस हैं, और प्रिंसिपल है प्रिपरेशन है. प्रिपरेशन मैंने पहले बताया, दिस इज़ लिमिटेशन, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन 1 यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स gets poisoned. ठीक है, even a trace of impurities. Please copy down all these points, these are very important points. ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. एक चीज़ है इसमें, प्रेशर जो है आपका करीबन आपको 1 atm प्रेशर आपको मेंटेन करना पड़ता है ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये भी बहुत मुश्किल होता है इसको मेंटेन करना काफ़ी देर तक, फॉर अ यूनिफॉर्मली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को करने के लिए. तो हमें मजबूरी हो जाती है कि हम इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड्स, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड. ठीक है, जो हमने हाइड्रोजन को यूज़ करा है, अपना जो शी है हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, शी जो है वो बेसिकली हमारा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है. ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम सेकेंडरी आपकी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करें. जो बहुत मार्केट में कॉमनली यूज़ होती हैं या हम लोग यूज़ करते हैं, वो है कैलोमेल इलेक्ट्रोड,
ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी यूज्ड। ठीक, जैसे कि एक स्टैंडर्ड कैलविन बनाने के लिए आप Hg/Hg2Cl2 सॉलिड ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप KCl सैचुरेटेड सोल्यूशन भी उसमें डालें और उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो करीबन 0.2415 वोल्ट होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक जनरल आइडियाज़ है जो हमें थोड़ा याद रखना है। ये KCl जो है ये सब चीज़ें उसमें डलेंगी जो हमारा कैसा होगा, सैचुरेटेड कैलविन। ये याद करने की है, ज़्यादा इसको फोकस मत करिए क्योंकि आपके में यही है, शी ही है। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ there are few things which you can easily do. This is calculation of hydrogen pH of हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर आप pH आप निकालना मांगते हैं क्योंकि इसमें डेरिवेशन तो ये वाला है ही नहीं, इसमें जनरल है, तो pH ई सेल अपॉन आपका 0.059। अब ना ई सेल क्या था हमारा, EMF ऑफ द सेल। ठीक है, pH तो आपको मालूम ही है, pH ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ अ सोल्यूशन यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये प्रिपरेशन है आपकी। We will measure the standard this thing. We'll measure the electrode potential with the help of this standard electrode potential. So measurement of the standard electrode potential you can determine. I'm just using the first one with the zinc one. You know, this way we are making a galvanic cell, and over here we have already seen that 1 molar solution of zinc sulfate is being used, so that from there you can get the zinc ions, and electrode should be also the same containing basically should be the same metal that is present, its ion is present in this particular electrolyte. So it has been, you know, the other side also I have used this thing. Initially we were using copper, but now we are not using copper, we are using She here, and it's acting as the electrode, this thing cathode over here. And you know, over here from getting the H plus ions, you know that we are using a 1 molar solution of HCl ions, so that we could get H plus ions in this solution over here. So what is happening, you know, this connected with the salt bridge and electric current is passed through it. So we know that this is the zinc hydrogen gas electrochemical cell is being used. And let's focus on it, how the reactions are going. If you focus on the zinc this anode part, you know the Zn was losing 2 electrons and it was giving you Zn plus 2 ions, और है ना, ये चीज़ आपका एनोड में हो रहा था, ऑक्सीडेशन वॉज टेकिंग प्लेस और रिएक्शन आपको ईजिली पता है। ठीक है, तो दिस पार्ट वॉज टेकिंग टूवर्ड्स एट एनोड में आपका ईजिली ये कंडीशन शो कर रही थी। और आपका कैथोड में अगर आप देखते हैं, कैथोड में यू वर हैविंग द H प्लस आइंस वॉज देयर इन द सोल्यूशन एंड दे वर टेकिंग, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, क्योंकि दे विल फॉर्म, क्योंकि वी हैव सीन दैट एट कैथोड हाइड्रोजन गैस वॉज फॉर्म। ठीक है, तो H2 गैस जो है वो आपकी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। यहाँ पे ओपनिंग बना देना एक, जहाँ से आप H2 गैस को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आप बैलेंसिंग करने के लिए 2 लगा दीजिए। तो ये एनोड पे हो रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो Zn प्लस 2 सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या है, आपका H प्लस है 2, ये बेसिकली एक्वस कंडीशन पे है, और यहाँ H2 गैस हो रहा है। ये क्या है, ये एक्वस कंडीशन है, ये क्या है, सॉलिड है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो रिटन एज 1, ये सॉलिड है, या Zn प्लस 2 1 मोलर सोल्यूशन अगर उन्होंने मेंशन कर रखा है तो आप 1 मोलर लिख दीजिएगा। अब 2H प्लस आयन से 1 मोलर अगर दिया रखा हो तो 1 मोलर लिख दीजिएगा। H2 है, ये आपका गैस है। सो दिस वे यू कैन राइट डाउन योर नेट सेल रिएक्शन नोटेशन, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ये आपका एनोड की तरह एक्ट करता है जो कि नेगेटिवली है, और कैथोड की तरह ये एक्ट कर रहा है जो आपका पॉजिटिव है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। दिस वे नाउ वी हैव टू सी द EMF ऑफ द सेल। ओवर हियर द EMF ऑफ द सेल, हाउ यू विल कैलकुलेट। अब आपको मालूम है, आपने जो EMF ऑफ द सेल निकाला रखा है, तो आपको मालूम है कि आपके पास बहुत से ऐसे रिएक्शन थे EMF निकालने के, हमने उसमें से एक चूज़ करा रखा है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, यही मैंने कहा था कि सबसे सेकंड मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है, इसको यूज़ करिए। अब एनोड पे क्या चल रहा है आपका, एनोड पे अगर आप ध्यान से देख के चलिए और एक चीज़ देख लीजिए, जो हम लोग को गिवन है कि सेल का जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो हमें दिया रखा है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज़ अराउंड 0.76 वोल्ट इज़ गिवन टू अस। ठीक है, अब हमें देखना है, अब हमें देखो, हमें नोन से अननोन निकालना है। ये चीज़ हमारी नोन थी, कैथोड पे यहाँ पे आपने शी को यूज़ करा रखा है, तो ये हमारा नोन है या नोन, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब इधर आपको क्या, आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे जिंक के टर्म्स में लिया रखा है, तो Zn में क्या रिएक्शन हो रहा है, Zn में आपका ये रिएक्शन चल रहा था Zn के केस में, और कैथोड में आपका क्या रिएक्शन चल रहा है। ना दिस थिंग ना, आपने ईएमएफ ऑफ द सेल निकाला, ये आप ये इसको लिखने से अच्छा पहले आपने, क्योंकि आपने ये तो लिखिए क्योंकि ये फॉर्मूला है, और ये वैल्यू जो आपकी है ये आपने क्योंकि रिएक्शन निकाला है उसको आपको लिखना है। ठीक है, एनोड पे ऐसा रिएक्शन है, कैथोड पे क्या चल रहा था आपका 2H+ और H2 इस तरह से। अब आपको ये मालूम है कि इसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है और ये आपको निकालनी है एज इट इज़। ठीक है, और ये आपको दिया रखा है क्वेश्चन पेपर में 0.76 वोल्ट। अब आपको अगर ये निकालना है तो आप क्या वैल्यू आपको खुद निकाल लीजिए आप अपने आप। भाई इसको आप लेके जाएंगे यहाँ पर, ये आपकी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन बेसिकली क्या है कि ये आप इसको इधर लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ साइन उसको लेके जाएंगे तो ठीक है। ठीक, तो ये आपका कैसे हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी -0.76 वोल्ट आ जाएगा। अब नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आई है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे भी यहाँ से भी देख के अगर बाई चांस, क्योंकि ये नहीं दिया रखा हो तो आप कैसे जज करेंगे, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ सिर्फ खाली एनोड लिखा होता, एनोड भी नहीं लिखा होता, कुछ और नेगेटिव वैल्यू लिखी होती, तो समझ लीजिए नेगेटिव वैल्यू आई, एनोड की तरह एक्ट कर रहा है आपका, और आप ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ना। द सेम मैनर वी कैन यूज़ व्हेन यू आर यूजिंग इट एज दिस थिंग एनोड, तो उसका भी देख लेते हैं। नाउ आई हैव यूज दिस डायग्राम फ्रॉम योर बुक ओनली। तो ये कॉपर और H2 गैस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाउ शी इज़ बीन एक्टिंग एज अ एनोड ओवर हियर। ठीक है, HCl का आपने 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl यू आर टेकिंग ओवर हियर, एंड दिस इज़ द 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोड आप वही यूज़ करेंगे जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हैं एज अ सोल्यूशन, तो कॉपर आपका कैथोड की तरह यूज़ करेंगे। एनोड में आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, याद करो कैथोड में हमारी बन रही थी, तो हम हाइड्रोजन गैस को निकाल रहे थे, एरो बाहर की तरफ था। ठीक है, और यहाँ पे जो ये अब हम यहाँ पे अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है यहाँ पे। अब यहाँ देखो आई मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ करंट से, करंट कैसे फ्लो कर रहा है फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करते हैं, एनोड टुवर्ड्स कैथोड। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है आपका गैल्वेनिक सेल का पूरा, और लेकिन कौन सा गैल्वेनिक सेल है, कॉपर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, तो ये आपने यूज़ करा। अब इसमें हम बेसिकली रिएक्शन देखेंगे और देखेंगे हाउ दिस थिंग्स इज हैपनिंग। इट्स क्लियर टू यू, इट्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज़ एक्टिंग एज ए नोड। नाउ चिल्ड्रन, जो हमारा सेल रिएक्शन है उस पर हम नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा सेल रिएक्शन हमको दिया रखा है वो बेसिकली मैं आपको दे रही हूँ, मैं लिख दे रही हूँ, लेकिन हम ये समझेंगे कि हमने कैसे बनाया। हम एंड में ही बनाएंगे, लेकिन मैं हम जनरल अभी लिख के दे रहे हैं आपको। सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करो। ठीक है, सॉलिड है, ये आपका गैस है। ठीक, मैंने अगर कहा रखा है ये एक्वस भी हो सकता है, 1 मोलर, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर में आपको क्या गिवन है। नाउ लेट्स सी वंस अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द डायग्राम। ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे ये देखिए एनोड की तरह एक्ट कर रहा है शी, और ये कैथोड की तरह। तो लेट्स फोकस ऑन द, चलो कैथोड ईजी होता है, पहले कहते हैं ये एनोड से ही लेके चलो, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ हो रहा है। ठीक है, अब हम एनोड को देख के चलते हैं। जैसे हमारा एनोड ये है हमारा, तो एनोड में आपने देखा था ना शी है, हाइड्रोजन गैस जो है डाली जा रही है, निकल नहीं रही है, डाली जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो ये क्या है 2H। ठीक है, और यही चीज़ आई है आपकी अपने सेल रिएक्शन में अगर आप देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनोड में हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, अब आप अपना कैथोड पे देखिए, कैथोड में क्या था, कॉपर है, Cu+2 आयंस, क्योंकि सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट था। ठीक है, CuSO4 सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज़ करा है, कॉपर+2 आयंस आपको मिले। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज़ हुए हैं, इनने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं।
और ये Cu बना लिया। देखो ये एक्वस कंडीशन था और ये आपका सॉलिड, ये क्या था, गैसियस स्टेट है, और ये क्या है आपका एक्वस कंडीशन। ठीक है, ये क्या है H2 2H प्लस, यहाँ क्या है प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या है Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपके पास है, ये एक्वस कंडीशन है और ये सॉलिड कंडीशन है। ठीक, ये आपके पास आ रहा है, वो एनोड है और ये क्या है आपका कैथोड है। क्लियर है? अब आपका रिएक्शन हम बनाएंगे, जैसे 100 सेल का H, ये H प्लस 2, ये गैसियस कंडीशन में है, ये एक्वस कंडीशन है, सॉल्ट ब्रिज है, Cu प्लस 2 है, ये एक्वस है, कॉपर है, ये S है। ठीक है, सॉलिड स्टेट है। ये आपके पास यही ओवरऑल रिएक्शन हमने स्टार्ट करी थी। अब सपोज़ करो हमें जो क्वेश्चन पेपर में सपोज़ करो द EMF ऑफ द सेल क्वेश्चन पेपर में गिवन है से 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जाहिर सी बात है ये नोन है, ये तो 0 वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, ये अननोन है, ये हमें निकालना है। तो हमें पूछा जाएगा ही, अब हमें वही लिखना है अपना ई नॉट सेल EMF ऑफ द सेल जो बेसिकली दिया रखा है, वो हम अपना वही एनोड वाला लगा लें। सबसे अच्छा सेकंड मेथड है हमारे पास। बाद की बातें वो सब हम करते रहेंगे। एनोड है, कैथोड है, ई सेल है। यहाँ पे हमें ये वैल्यू हमें 0.0 दी रखी है और ये हमारी, ठीक है, यहाँ पे इसके बदले ऐसा लिख लो, ये वैल्यू लिख लो 0.34। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब आराम से हम अपना आराम से कर लेंगे। ये हमारा है कैथोड, क्या हो गया हमारा 0.0। ठीक है, प्लस प्लस 0.34, सॉरी, तो ये हमारा ये वैल्यू दी है, ये हमारा आ जाएगा 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब देखो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, तो मैंने जनरल में लिख दिया। ये जो लाइन है इसको चेंज कर लो। कैसे लिखोगे, ई नॉट सेल, क्योंकि एनोड पे एक रिएक्शन हो रहा है और वो रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारा हो रहा था H2/2H प्लस। ठीक है, प्लस, और कैथोड पे हमारा रिएक्शन हो रहा था Cu12 प्लस गिव्स यू Cu। तो ये लिख के और तब आप यहाँ लिखेंगे 0.34 वोल्ट। ये हमारा 0.0 प्लस 2/C, तब हम अपना आंसर लिख देंगे। तो आप इस तरह से करिएगा, इसको इलेबरेट ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो कभी क्या कुछ लोग नंबर नहीं देते हैं, तो ये भी बताना पड़ेगा ना एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, तो ये लिख दीजिए। इससे आप अपना आराम से वैल्यू, तो मतलब एक स्टैंडर्ड से आप आराम से अननोन कंडीशंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी है करीबन 0.34 वोल्ट वैल्यू आ जाएगी। So I think this part is clear to you all, and please learn this thing how to do it, because this is the easiest part। ये तो नहीं आएगा न्यूमेरिकल में आपके पास, क्योंकि आती दूसरी चीज़, ये बेस है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलेज दूसरे हैं नेजर्ट के और गिब्स फ्री एनर्जी वाले कैलकुलेशन वाले, वो ज़्यादा आते हैं। तो प्लीज़, बट दिस इज़ द बेस विच यू हैव टू फोकस ऑन इट।